मोस्ट ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए राइट होना जरूरी है, बट रियलिटी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी अक्सर लूज करते हैं। मार्केट में हर सेकंड मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और हर ट्रेड के पीछे दो अपोजिंग व्यूज होते हैं। सेलर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर वो पैनिक में एग्जिट कर रहे हैं, और बायर्स को लगता है कि यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल है या ये बॉटम है। किसी भी पॉइंट पे कोई एब्सोल्यूट राइट आंसर नहीं होता, सिर्फ टाइम बताता है कि कौन सही है। टाइम के साथ हर ट्रेडर्स विंस और लॉसेस दोनों को फेस करता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो सिर्फ हमेशा ही प्रॉफिट करता हो। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें अलग क्या बनाता है? सिंपल है, उनके विंस ओवर टाइम उनके लॉसेस से ज्यादा होते हैं। मैथमेटिकली इसे बोलते हैं हम एक्सपेक्टेंसी। Average win into probability of win minus average loss into probability of loss। पेपर पे ये सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में बिल्कुल नहीं। तो इवन अगर आपका एक्सपेक्टेंसी प्रॉफिटेबल है तब भी आप लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक्स फेस कर सकते हो, और यही जगह है जहां मोस्ट ट्रेडर्स ब्रेक डाउन करते हैं। सिस्टम फेल नहीं होता है, ट्रेडर फेल हो जाता है। इसी एक्सपेक्टेंसी को ट्रेडिंग में एज भी बोलते हैं, लेकिन एज हर किसी के लिए सेम नहीं होता। कुछ ट्रेडर्स डिस्क्रेशन और एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं और कुछ प्योरली सिस्टम्स और डेटा पे। तो एक्चुअली ये एज कैसे बनता है, आइए सुनते हैं कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स से। I'm basically a manual discretionary trader who predominantly trades expiries from short gamma side. इसका मतलब क्या है? मैं expiries पे options को sell करता हूँ. So for a manual discretionary trader, there is no such thing as one single edge, but rather a good successful discretionary trader is a result of stacking a number of micro edges on top of each other. तो क्या क्या हो सकता है micro edges? One is your discipline, your psychology, like how strong your psychology is, and your lack of desperation to make money, and of course your trading framework, because हमारे पास कोई एक strategy या setup नहीं होता है, but rather we have a framework in which we kind of experiment, we kind of explore, and we try to be in sync with the markets as much as possible. And of course आपका जो risk management है, आपका जो money management है, all these things are micro edges. And also how well your life outside trading is, that itself is an edge. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो लाइफ आउटसाइड ट्रेडिंग है वो काफ़ी केओटिक है, काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है, देन यू ब्रिंग द सेम काइंड ऑफ एनर्जी इन टू द मार्केट्स, एंड देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ब्रेकिंग योर डिसिप्लिन एंड getting FOMO'd, getting annoyed, and breaking your rules. So all those things kind of have some sort of a domino kind of an effect. So I truly believe that how you behave outside your trading is how you behave in your trading life. So having a structured and having a non-chaotic life outside trading is also a micro edge in itself. And at the same time, your ability to not get frustrated easily is a very big micro edge for a discretionary trader, because as a discretionary trader you take 20-30 trading decisions in a day, especially if you're a short term kind of a trader like me who predominantly trades expiries. So let's say मैंने दिन शुरू किया with a bearish bias and market suddenly उल्टा घुमा, so then I have to not bring my ego in, and I have to just flow with the markets, try to be in sync with the markets, and immediately मेरा bias को बदलना पड़ता है. तो like this you might have to change your bias multiple times in a day without getting frustrated. So your ability to not get easily frustrated with the markets chopping you out, because markets ऐसे linearly तो move नहीं होता है, and markets continuously chop करता रहता है. तो with every chop, with every swing, if your system or if your approach is to be in sync with the markets, then you should not be getting easily frustrated with the market moves. That is also an edge in itself. Apart from that, how mentally agile you are, how fast you can respond to the markets, and how well you can cut your losses, all those things are micro edges. And when you stack all these layers on top of each other, then you become a profitable discretionary trader. सो हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ एंड मैं जो भी मैं स्ट्रैटेजी करता हूँ फुल्ली ऑटोमेटेड होता है एंड आई यूजुअली डू ऑप्शंस ट्रेडिंग. तो फॉर मी एज इज़ माय रिस्क मैनेजमेंट. देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ प्रिडोमिनेटली, मतलब 90% ऑफ माई स्ट्रैटेजी इज ऑप्शन सेलिंग. तो मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देर इज़ वन स्ट्रैटेजी दैट आई रियली स्वेयर बाय, विच इज़ द डाउ थ्योरी स्ट्रैटेजी. बेसिकली उसमें क्या है कि आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेंड, सो आई एम अ ट्रेंड फॉलोअर. And if the market is in uptrend, I will go for a buying opportunity, and if the market is in downtrend, I
विल गो फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब ट्रेंड मतलब मैं हायर हाई हाई लो देख रहा हूँ, और अगर हायर हाई लो आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं एट द मनी पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दूंगा, एंड इफ द मार्केट इज कमिंग डाउन आई विल शॉर्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन. So that is my strategy. The edge, like I said, is very very strong risk management. मतलब क्योंकि मैं एक ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ, आई विल हैव अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉसेस, तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट माइंड हैविंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 15 to 20 पॉइंट्स ऑन इंडेक्स. दैट मीन्स अबाउट 7-8 या 10 पॉइंट्स ऑन ऑप्शंस. बट व्हेन आई एम विनिंग एटलीस्ट 1:5, 1:5, 1:6. So that was my edge, and that was a strategy that I really liked in the beginning. हमने एज को एक फॉर्मूले की तरह डिफाइन किया, बट रियलिटी में उससे काफी ज्यादा है. जैसे प्रफुल ने बताया, इज द रिसर्च बिहाइंड अ फ्रेमवर्क. डिसिप्लिन से उसे फॉलो करना और प्रेशर में डिसीजंस लेना. और असीम के लिए उनका बिगेस्ट एज है रिस्क मैनेजमेंट. वो मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो पहले से अपना रिस्क डिफाइन रखते हैं और फिर मार्केट को प्ले आउट होने देते हैं. डीपर लेवल पे देखें तो चाहे डिस्क्रेशनरी हो या सिस्टमैटिक, हर एज का एक ही कोर है, रिपीटेबल प्रोसेस विद कंट्रोल्ड रिस्क. हर ट्रेडर एक सिमिलर जर्नी से गुजरता है. पहले थ्योरी सीखते हैं, फिर मार्केट में आते हैं और रियलाइज करते हैं कि रियलिटी बुक से काफी अलग है. ट्रायल एंड एरर, विंस एंड लॉसेस के थ्रू स्लोली एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं जो उनके लिए काम करती है. बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा काम करेगी? मार्केट्स अडेप्टिव होते हैं. जैसे ही कोई चीज कंसिस्टेंटली काम करने लगती है, लोग उसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं. चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. 920 स्ट्रैडल. ये एक स्ट्रैटेजी है जहां ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन 920 AM पे एट द मनी कॉल और पुट को सेल करते हैं. एम होता है थीटा डिके और इंट्राडे वॉलेटिलिटी क्रश को कैप्चर करना. कुछ टाइम के लिए, स्पेशली कोविड के बाद वाले पीरियड में, ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छा काम कर रही थी. क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी एलिवेटेड थी और प्रीमियम्स काफी हाई हो रहे थे. अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव भी करता था तो एक साइड पे लॉस होता था, लेकिन दूसरी साइड का डिके उससे काफी हद तक कंपनसेट कर देता था. लेकिन धीरे धीरे जैसे वॉलेटिलिटी कूल होने लगी, ये सेटअप पहले जैसा काम करना बंद कर दिया. लोअर वॉलेटिलिटी का मतलब था लोअर प्रीमियम्स, और अब वही मूव्स जो पहले एब्जॉर्ब हो जाते थे अब लॉसेस देने लगे. जो चीज बदली वो स्ट्रैटेजी नहीं थी, मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो गया था. तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक स्ट्रैटेजी रेजीम शिफ्ट की वजह से काम करना बंद कर देती है. इसे बोलते हैं हम एज डीके. एक स्ट्रैटेजी किसी पर्टिकुलर मार्केट एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, लेकिन जैसे ही कंडीशंस चेंज होने लगती हैं तो ज़्यादा लोग उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. कभी कभी एज कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, वो बस करंट मार्केट रेजीम के साथ आउट ऑफ सिंक हो जाता है, और ये फेज हर ट्रेडर फेस करता है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या स्ट्रैटेजी फेल हो रही है या ये सिर्फ नॉर्मल ड्रॉडाउन है? और यही जगह है जहाँ मोस्ट ट्रेडर्स गलती करते हैं. वो एक वर्किंग स्ट्रैटेजी को ड्रॉडाउन में छोड़ देते हैं या फिर एक ब्रोकन स्ट्रैटेजी को पकड़ के बैठ जाते हैं. तो आइए देखते हैं कि प्रोज इसके बारे में क्या सोचते हैं. So when did I get to know that my edge was fading? As a discretionary trader, आपको एक real time information मिलता रहता है, and also since you have been trading discretionarily for a long time, आपका एक अंदाजा रहता है how your day should pan out. For example, when I start my trading at 9 o'clock, I have a very good approximation of how my MTM curve should move throughout the day. And when, continuously you're having the days where the day is not playing out as per your plan or as per how it has been over the past few months, then you take a cue. So as a discretionary trader, there is a bit of a micro edge in kind of front running a regime. जब भी मार्केट में एक स्ट्रक्चरल regime change होता है, तो then it is the discretionary trader who gets to observe it first and who gets to adapt first. So yes, as I said, multiple inputs हमको मिलता है. One is how the markets are behaving, like मार्केट्स का प्राइस कैसे मूव होता है, उसका एक फील आता है फॉर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ वेल यू आर इन सिंक विद द मार्केट्स. एंड थर्ड थिंग इज योर इक्विटी कर्व और योर मार्क टू मार्केट कर्व इटसेल्फ. सो व्हेन यू गेट 2 or 3 continuous days
where your MTM curve or where your equity curve is not progressing the way it is supposed to, then वहाँ से आपको एक input मिल जाता है. And at the same time, as I said, you take almost 20, 30, 40 decisions, trading decisions in a day as a discretionary trader. So every trading decision is coming from some sort of a markets prompting you to take that particular decision. So अगर markets ने कुछ random candles print कर रहा है या markets की volatility जो है it is much higher than what it is being priced in, then obviously आपको एक clue मिल जाता है, whether it is in terms of completely changing the approach or whether it is in terms of okay, now it is time to size down, or now it is time to have some stricter risk management systems in place. So all these kinds of things. तो मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि लाइक एग्जैक्टली आपका एज कैसे जाएगा, बट फॉर मी लेट्स से इफ देर इज अ मंथ विच आई क्लोज इन रेड, जनरली क्या है, इवन इफ देर इज अ ब्रेक इवन मंथ आई कंसिडर इट टू बी अ वेरी टफ मंथ. एंड अगर एक महीना मेरा ब्रेक इवन भी आता है तो देन आई गो बैक टू माई ड्राइंग बोर्ड एंड आई सी वॉट हैज चेंज्ड इन द मार्केट, वॉट हैज स्ट्रक्चरली शिफ्टेड इन द मार्केट्स, एंड आई ट्राई टू align myself, I try to adapt myself to that particular changing regime. Now the question is कि when did I know that the edge is fading, right? So जैसे मैंने बोला, I've been doing the same strategy for over 4-5 years, and the strategy was working beautifully. मैं कहूँगा for the 3-4 years, but in the last 1.5 year, what happened was that Nifty का price बढ़ चुका है, right? Now we are trading at 25,000. तो जो मेरा stop loss होता था, which was a small stop loss of let's say 20-25 points, that has increased because the pullbacks are larger. अगर मेरा निफ्टी का पुल बैक ही 40-50 पॉइंट का आ रहा है, सो ऑब्वियसली माय स्टॉप लॉस इन माय ऑप्शंस इज आल्सो बिगर, राइट? बिकॉज आई विल हैव अ स्टॉप लॉस मे बी अबाउट 20 पॉइंट्स अगर मैं यूजुअली एट द मनी में ट्रेड करता हूँ या इन द मनी में ट्रेड करता हूँ. 20-25 पॉइंट्स अगर मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है, दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग फॉर अ 1:4 और 1:5 काइंड ऑफ अ टारगेट, दैट मीन्स आई नीड टू मेक अबाउट 120-130 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इन ऑप्शन सेलिंग. एंड जैसे मैंने बोला, आई डोंट लाइक टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग. आई मीन दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी. So there was a change, the fundamental change in the market itself. The Nifty, which used to trade, let's say, at 15,000, has suddenly gone and trading at 25,000. And because of that, pullbacks became larger, pullbacks became bigger. And जो मेरा risk management था, that was not fitting the bill, because now I have to make 100 point, 120 point profit in options, which is very hard to make on a normal non-expiry day. So that is when I realized कि ठीक है, has to be some changes that I need to do in the strategy itself. इसको आइडेंटिफाई करने का कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है. हर स्ट्रैटेजी अलग तरीके से ब्रेक होती है और अलग रीजंस के लिए. सिर्फ एक ही तरीका है, कंसिस्टेंटली ट्रैक करना, अपने ट्रेड्स रिव्यू करना और अपने डेटा को समझना. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अडैप्ट कैसे करें. अडैप्ट करना काफ़ी सिंपल लगता है, बट रियलिटी में ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ों में से एक है ट्रेडिंग में. So how do I adapt when this happens? The first thing that I do is to drop my size. पहले मैं scale back कर देता हूँ, थोड़ा बहुत step back कर देता हूँ, because you need to have some sort of a neutral lens to observe what changes the markets are going through. But अगर आप full size से continuously trade करते रहते हैं तो then your lens or your perspective is not neutral, but rather it is biased based on your positions. So the first thing that I do is to scale down, because when things are not going in your favor, there are two possibilities. One, either the markets are not conducive to the kind of trading style that you have, or you're not in sync with the markets. So in both the cases, it is to your advantage to scale down or to size down. So the first thing that I do is to size down. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि कंप्लीटली मैंने सिस्टम या मेरे अप्रोच को कंप्लीटली बदलता नहीं हूँ. एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ द डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स वुड डू दैट, बिकॉज योर ट्रेडिंग अप्रोच इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो आपका पर्सनैलिटी कैसा है उसके बेसिस पे आप मार्केट्स को भी ट्रेड करते हैं. एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल और योर अप्रोच इज developed after thousands of iterations over thousands of trades. So इतना आसान भी नहीं है कि सडनली आपका जो ट्रेडिंग अप्रोच को ही डिस्कार्ड करके सडनली एक न्यू ट्रेडिंग स्टाइल को अडेप्ट करना. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स
they kind of weather out these kinds of phases by making minor tweaks to their systems. Minor tweaks कैसे, उनका जो एंट्री में थोड़ा बहुत माइनर ट्वीक डाल देते हैं, मे बी दे हैव सम स्लाइटली स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग देयर पोजीशंस. तो पोजीशंस को कैसे पिरामिड करते हैं, पोजीशंस को कैसे डीस्केल करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ट्वीकिंग हम लोग डालते हैं. एंड ऑल्सो वी माइट इंट्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग एंड वी माइट ऑल्सो हैव सम स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया फॉर द रिस्क मैनेजमेंट. सो ऐसे छोटे छोटे जो ट्वीक्स है हम लोग बनाते हैं in order to adapt with the markets, but we don't completely change the system. Just to give you an example, since 2021 I have been a short gamma trader, basically expiry day पे मैं predominantly options बेचता हूँ, and उसके बाद 2021 से लेके 2026 तक the market has matured in ways that one cannot imagine. बहुत ज़्यादा changes आए हैं, बहुत ज़्यादा structural changes आए हैं, बहुत ज़्यादा different players आए हैं, margins changes हो चुके हैं, like leverage जितना मिलता था वो काफ़ी कम हो चुका है, तो returns जो है उसका expectation, drawdown का जो expectation वो काफ़ी change हो चुका है, and structurally market intraday में कैसे move होता है, जो मनी फ्लो कैसे होता है, वो सारे चीज़ें चेंज हो चुका है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट माई मेजर जो अप्रोच है, जो बड़ा वाला जो लेवल पे जो अप्रोच है, वो इट इज स्टिल द सेम, बट आई हैव मेड एन नंबर ऑफ ट्वीक्स ओवर दीज ईयर्स. सो इफ आई लुक बैक हाउ आई यूज्ड टू ट्रेड बैक इन 2021 एंड हाउ आई ट्रेड नाउ इन 2026, कंप्लीटली अलग दिखता है, बट द फंडामेंटल अप्रोच, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स और द बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी आप कहना चाहते हो, दैट इज स्टिल द सेम. What did I do after this? तो जैसे मैंने बोला कि my edge always is money and risk management. That is what I feel the edge is. Strategy तो आपको हजारों मिल जाएंगी. I am technically always I like to do naked trading. जैसे मैंने बोला I would rather just short a call, short a put, because intraday trade कर रहा हूँ and I have a very strong stop loss, तो मेरा exit तो हो ही जाएगा. But because of the strategy, because of the stop losses now, एक चीज मैंने पहले ट्राई करी, आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ इन द मनी, बट उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, इवन दो आई वाज गेटिंग द प्रीमियम बट आई वाज नॉट गेटिंग सो मच थीटा टिकट. सेकंड थिंग जो ऑप्शन था ऑब्वियसली वाज टू क्रिएट अ स्प्रेड. नाउ स्प्रेड के दो प्रॉब्लम आता है. पहला प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली कि आपको एक्स्ट्रा ट्रेड लेने पड़ रहे हैं, देयर इज एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा ब्रोकरेज, एक्स्ट्रा स्लिपेज. सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम इज अगेन योर जो प्रॉफिट इज दैट इज कैप्ड, बिकॉज अगर मैं स्प्रेड ले रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ क्रेडिट स्प्रेड, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच प्रॉफिट जितना मेरे को मूवमेंट का मिलना चाहिए. सो एट द एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट आई हैड टू शिफ्ट माय स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर. Yes, so I had to shift my strategy altogether because the fundamental edge was gone. The edge of my 1:4, 1:5 was gone in this particular strategy, which was my go-to strategy for so many years. So yeah, that happens, and market keeps giving you the googly, and you will have to keep learning how to play them well. हर ट्रेडर अलग तरीके से अडेप्ट करता है. ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी पे और उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स पे. लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, मार्केट्स इवॉल्व करते हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इवॉल्व करते हैं, और इसीलिए कोई भी एज हमेशा काम नहीं करती. बिकॉज इन ट्रेडिंग गोल ये नहीं है कि आप एक ऐसा एज ढूंढो जो हमेशा काम करे. गोल ये है कि आप इतना सर्वाइव करो कि आप नेक्स्ट एज ढूंढ पाओ. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग विद ग्रो फॉर मोर सच वीडियोस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.